Okay, ma'am. Good afternoon to all. I, Ritu Sharma, Assistant Professor, School of Liberal Arts and Languages, welcome you all in today's session. As you all know that today, School of Liberal Arts and Languages is organizing a webinar, Gandhian Philosophy, Path to Atmanirbhar Bharat with Atmavishwas. It's my pleasure to open this session with Saraswati Vandana. Let's invoke Goddess Saraswati. या कुंदेन्दु तुषार हार्ध्वला या शुभ्र वस्त्राव्रता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवै सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापनीम वीणा पुस्तक धारणीम भेदाम जाड्या अंधकारा पहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम. Now, may I request Honorable Vice Chancellor Professor Ranjit Singh sir to share few words of wisdom with us. Over to you, sir. Thank you, Ritu. Thank you very much. Today's eminent speaker, Professor Dr. H.C. Jain, eminent historian and author, Dean, School of Liberal Arts and Language, Professor Gunjan Agarwal, and dear participants. It's a matter of great honor for me to be the opening speaker on this very specific, very special webinar series on Gandhian philosophy and the very interesting and very important topic, Path to Atmanirbhar Bharat with Atmavishwas. I'm very much sure that this whole deliberation will make you more knowledgeable and more wise. Gandhiji is not only known as a freedom fighter, but as a person who always gave useful ideas for countries' economic development as well as social development. And the idea of self-reliance also came from Gandhiji. And what I can see, if you want to be self-reliant or self-sufficient, then you need to be self-confident. So that is the importance of self-confidence in becoming self-reliant. The topic is well chosen, and it is, demand of time right now to go for such deliberation and follow them. It is very interesting, very relevant topic. It is very aptly chosen and will definitely enrich all the participants. I wish a grand success to this deliberation and hope that this deliberation will make all the participants wiser and they will be more self-confident and will contribute to this program, this dream of our Honorable Prime Minister, that is Self-Reliant India, which was launched on 12th May 2020. I wish you all the best. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, sir, for enlightening us. Now, it's time to request Dean, School of Liberal Arts and Languages, Dr. Gunjan Agarwal ma'am, to welcome all the dignitaries, respected speaker, and participants. Over to you, ma'am. Thank you, Ritu. Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Ranjit Singh ji, my worthy colleagues, respected speaker, sir, and dear participants, good afternoon. I welcome you all. Shobhit University is one of the leading universities in India, imparting quality education with intact moral values. Empowering nation through education is the vision of the university. The university is offering UG, PG, and vocational courses through 10 schools, including School of Liberal Arts and Languages. The school is running undergraduate courses in English, Hindi, Urdu, Sanskrit, Sociology, Political Science, Public Administration, and postgraduate courses in English and Political Science with PhD in English Language and Literature. Today, the school is organizing this webinar on Gandhian philosophy. There are so many things about the life, ideology, perception, working, and writings of Gandhiji. On one hand, we learn truthfulness from his experiments with truth,
non-violence through his participation in Indian national movement, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. While on the other hand, we get scientific facts when he conveys his principle through three monkeys: never say bad things, don't hear bad things, and don't do anything bad. So one can get a clear vision of self-dependent and confidence when one tries to understand his satyagraha, his emphasis on khadi, and many more things. Our respected worthy speaker will throw light on these aspects in detail. Let me introduce Professor Hukam Chand Jain ji. Professor Jain is a renowned historian, educationist, and writer. He is the recipient of prestigious Maharana Kumbha Award by the state government for his outstanding contribution towards historical research. He has served as head Department of History, University of Kota, and as principal, Government College Kota. Besides this, he was also nominated as member, Board of Management, and Board of Studies in various state universities. Around 24 of Professor Jain's research papers have been published on various aspects of history and culture in journals of national and international repute. He has also supervised numerous research scholars for their doctorate degree. Besides, he is the president of Akalank Shodh Sansthan, an organization which works in the field of curation and publishing old manuscripts. He has authored several books on history, some of which are used as standard textbooks as well. His important works include A History of Modern World, Dictionary of Indian Historical Places, Indian History and Cultural Encyclopedia. 16 editions of his most popular book on modern world history have been published and translated in many languages, for example, Hindi, Marathi, and Chinese. Now, this is something about Professor Jain, and the list is very long. So now I would like to invite Professor Jain to share his observation on Gandhian philosophy with us. Thank you very much, sir. Over to you, sir. Hello. Hanji, sir. Yes, sir. Are you listening properly, madam? Yes, sir. Please carry on, sir. So nice. And thanks for inviting me. And I am very much thankful to Soviet University and his Vice Chancellor, Professor Ranjit Singh. And also to the staff, including Dr. Ritu Sharma. I am also thankful to you, Madam Gunjan, for initiating this webinar. Gandhian philosophy path to Atmanirbhar Bharat with Atma Vishwas. Atmanirbhar, self-reliant. Atmavishwas, self-confidence. गांधी से अधिक आत्मविश्वास कितने लोगों में होगा? आपने देखा गांधी ने जो उनका पूरा जीवन है वो कितने कामों में बीता है। गांधी ने कभी एक मिनट खराब नहीं किया। गांधी ने अपने पीछे लिख रखा था, बी क्विक, बी हरी एंड बी गोन। आप बात करें, संक्षिप्त करें और चले जाएं। तो ये जो उनका मंत्र था कि समय खराब न हो, और उस समय खराब न होने के पीछे हर मिनट का उपयोग किया जाए। और उन्होंने, आप देखिए, मैं अपने श्रोताओं से और विद्वज्जनों से जो इनलाइटेंड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक आत्मविश्वास जगाया किस चीज में, कि हमें आजादी मिल सकती है, हमें फ्रीडम मिल सकती है, हमें स्वराज मिल सकता है, हमें मुक्ति मिल सकती है बिना वायलेंस के, विदाउट वायलेंस। We will achieve freedom moment, we will achieve independence without
वायलेंस। तो यह जो बात थी कि अहिंसक साधनों का, वायलेंस के जो मीन्स ऑफ वायलेंस है उनका उपयोग नहीं करेंगे, ये बात एक अद्भुत बात थी। ये रिलीजन में और फिलोसॉफी में तो चल सकती थी, पर पॉलिटिक्स में इसका पहली बार पूरे विश्व में उपयोग किया गया गांधी के द्वारा। तो उन्होंने एक आत्मविश्वास जगाया। अभी तक जो फ्रीडम स्ट्रगल एक लिमिटेड क्लास के लिए सिमटा हुआ था, उसके लिए एक बड़े वर्ग के लिए उसको उन्होंने बड़े वर्ग में तक वहां तक ले गए और ये संभव बनाया। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से मास मोबिलाइजेशन। उन्होंने मास मूवमेंट चलाए, जन आंदोलन को जन्म दिया। तो ये जन आंदोलन जो मास मूवमेंट था, इसने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। क्या आत्मविश्वास पैदा किया? कि यह आत्मविश्वास किया कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिल सकती है, हम उसे उस ताकत से मुक्ति मिल सकती है जिसका अंत सूर्यास्त ही नहीं होता है। तो ऐसी सी ताकत मिलती है। और गांधी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने जो कुछ किया वह पहले अपने पे लागू किया। सबसे पहले अपने पे लागू किया। कोई भी प्रोग्राम किया, कोई भी उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम उठाए, तो उन्होंने पहले स्वयं लागू किया। मैं ये बात डॉक्टर गुंजन को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो आधी आबादी है, इस आधी आबादी में भी आत्मविश्वास पैदा किया। जी सर। यह आधी आबादी जो आत्मविश्वास से बहुत दूर थी, आपको पता नहीं मैडम कि आज से मैं तो ये बता रहा हूं, जब मेरा जन्म हुआ तब महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, कई प्रकार की नियंत्रण थे, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे और कुछ हो। ये मैं सन 60 के दशक के बाद की बात बता रहा हूं। तो पर गांधी जी ने उस समय जो सोचा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से महिलाओं को जोड़ लिया। गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने जो नारी है शक्ति में एक जागृति पैदा की, एक स्वाभिमान पैदा किया, एक आत्मविश्वास पैदा किया। ऐसा आत्मविश्वास जो आत्मनिर्भर भारत को बनाए। आप सोचिए, लेट अस थिंक कि अगर महिलाएं अशिक्षित रहेंगी, महिलाएं एम्पावरमेंट महिलाओं का नहीं होगा, तो कैसे महिलाएं तो पीछे रह जाएंगी और भारत कैसे आगे बढ़ेगा। ये जो सेल्फ रिलायंट है, ये महिलाओं के बिना नहीं हो सकता था। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि उन्होंने जो ये फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, उसमें महिलाओं को आह्वान किया कि वह लक्ष्मण रेखा और पर्दे के ओर से पर्दे से बाहर निकले और राष्ट्रीय आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट का आह्वान किया गया। अब तक महिलाएं नहीं के बराबर संख्या में थी, परंतु उन्होंने एक ऐसा आत्मविश्वास जगाया। आप देखिए कि मैं अगर बात करूं आपसे 1922 और 22 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला 1920 से 22, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने महिलाओं का सहयोग लिया। और वह जानते थे कि खादी का कार्यक्रम हो, विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरने हो, विदेशी वस्त्रों की होली जलानी हो, या जुलूस और प्रार्थना समारोह में कार्यक्रमों में भाग लेना हो, तो इसमें स्त्रियों की भागीदारी बहुत अच्छी हो सकती थी। वह यह भी जानते थे कि स्त्री में एक नैसर्गिक एक ताकत होती है और उस ताकत के बल उसमें सहन शक्ति बहुत होती है, और वह टॉलरेंस पावर की वजह से स्त्रियां जो है इस काम के लिए अधिक ज्यादा सूट करेंगी। तो स्त्रियों के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर गांधी ने उनको आह्वान किया। और हम देखते हैं कि 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 4,800 महिलाएं जो हैं वह उनको ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था।
तो इस प्रकार से जब उन्होंने जेल में डाल दिया तो ये बता रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। और गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया तो दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू इत्यादि कई महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी और मुस्लिम महिलाओं ने भी भागीदारी में भाग लिया। हम देखते हैं कि गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, राजकुमारी अमृत कौर और मुथु लक्ष्मी रेड्डी और आदि आदि महिलाओं ने इस मोमेंट में जो है सक्सेसफुल उनकी लीडरशिप भी रही, भागी नहीं लिया, लीडरशिप भी रही। और शहरी महिला हो, रूरल एरियाज की हो और जो आपके अर्बन एरियाज की हो, सम्राट परिवार की हो अथवा एक सामान्य परिवारों की जो महिलाएं हैं, उनके दृढ़ संकल्प कष्ट सहने की तत्परता दिखाई, उससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। और इसलिए पंडित नेहरू ने क्या लिखा? पंडित नेहरू ने लिखा था, इस आंदोलन में जिस प्रकार स्त्रियों ने शक्ति, समर्पण और बलिदान की भावना दिखाई है, वो एक चमत्कार था। क्योंकि जो नारी बरसों से पर्दे में रही है, जिसको शिक्षा तक नहीं दी गई है, जिसकी बचपन में शादी कर दी गई है, जिसको बाल विवाह कर दिया जाता था, जिसको पर कई प्रकार के नियंत्रण लगे हुए थे, वह नारी एकदम ऐसी हो गई। और आप देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों ने गांधी जी को न केवल समर्थन किया, भाग लिया, बल्कि उन्होंने सहयोग में अपने जो आभूषण है, ऑर्नामेंट्स है, वह भी उन्होंने प्रदान किए। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि स्त्रियों ने जो कभी अपने आभूषण किसी को नहीं देती है, अपने ऑर्नामेंट से सोने चांदी के, वह चीज की और एक इस की स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। तो मेरा निवेदन यह है, जिस आत्मविश्वास की हम बात कर रहे हैं, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, जिस सेल्फ रिलायंट भारत की बात हम कह रहे हैं, वह बिना महिलाओं के जो लगभग 48% टोटल पॉपुलेशन की 48%, वह उन महिलाओं के आत्मविश्वास के बिना, उनकी भागीदारी के बिना, उनको जागृत किए बिना यह आंदोलन कैसे चल सकता था और भारत कैसे आत्मनिर्भर हो सकता था। तो लुईस फिशर जो इंग्लिश राइटर है, उसने लिखा है, he had also said that India has achieved real spiritual independence. Real spiritual independence. कब? आफ्टर द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह के बाद उसको रियल स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस। एंड द सेकंड थिंग इज द वीमेन पार्टिसिपेशन मैसिवली। महिलाओं के अभूतपूर्व सहयोग और नमक आंदोलन में, इन दोनों के कारणों की वजह से भारत को एक स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस मिली और बाद में रियल इंडिपेंडेंस भी मिली। तो ये जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, इस महिलाओं का पार्टिसिपेशन को भी आजादी के बाद भारत में स्वीकार किया गया। और आप देखिए पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश था या कौन सा ऐसा देश रहा जिसने अपनी आजादी के साथ ही महिलाओं को फ्रेंचाइज दी, वोट देने का अधिकार दिया, राइट टू वोट दिया 21 साल की प्रत्येक व्यक्ति को, और बाद में राजीव गांधी ने 18 साल की प्रत्येक लड़के लड़की को भी, यंग जनरेशन को भी वोटिंग का अधिकार दिया, फ्रेंचाइज दिया। ये एक रिवॉल्यूशन था कि आपको। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिवॉल्यूशन आत्मनिर्भर भारत की ओर किया, वो ये था इक्वलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग द मेल और फीमेल, विदाउट सेक्स के आधार पर उसके विभेद किए बिना स्त्री और पुरुष को समान रूप से स्वीकारा। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट मिला है, फंडामेंटल राइट के तहत। ये दो बातें, मैं इस दो बातों की तरफ अपने जो विद्वान पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, फाइन आर्ट में हैं, लैंग्वेज में हैं, क्योंकि ये जो वेबिनार करा रहे हैं आयोजित,
स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। नाम ही बहुत बढ़िया है ये, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट एंड लैंग्वेजेस। तो जो ये भाषा और कला का हो चाहे अन्य बात हो, वह गांधी कब रिलेवेंसी जो गांधी की कब नहीं रही है, ये बताइए आप मुझे। गांधी की रिलेवेंसी जितनी सन 1920 से 50 के बीच रही, वह आज भी है, क्योंकि भारत में अभी भी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, और जो आपके ये जो जितने भी बड़े उद्योग हैं ये अब एक चैलेंज दे रहे हैं। और कोविड ने, जब ये कोविड का सिलसिला चालू हुआ, कोरोना का, जो लगभग आज 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आफ्टर द 9 मंथ, इस कोरोना ने आपको कई सारी चीजें ये समझाइए कि गांधी क्या कैसे इस कोरोना के काल में गांधी की क्या प्रासंगिकता है, गांधी कितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि गांधी क्या बात करते हैं, गांधी बात करते हैं श्रम की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं। वह उनका चिंतन कर्म से अभिभूत था। मैंने आपको बताया वह 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहते थे, वह कर्म से अभिभूत था। कहते क्या थे वे, कर्म ही मेरा क्षेत्र, श्रम श्रम। जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो हम नई पीढ़ी आई है और जो हमारे बाद की जो गुंजन वाली डॉक्टर गुंजन वाली पीढ़ी है, और उसके बाद की भी जो नई पीढ़ी है, वह श्रम के महत्व को शायद न समझ पाई है। जो उसकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ श्रम है, परिश्रम है, ये नहीं। हमने क्या समझा आजादी के बाद कि काम दूसरा करे और हम व्हाइट कॉलर जॉब करें। यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत होती है कि जो काम करेगा उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा। अब जब हम काम नहीं करते हैं, गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं भाई आप काम करें, जो आपको आप जो काम कर सकते हैं वो करें काम, और काम जो कर सकते हैं वो तो करें ही सही, इसके साथ साथ आप जो भोजन करते हैं उसमें आपका परिश्रम होना चाहिए। अब वो परिश्रम, हर आदमी तो खेती नहीं करेगा, परंतु वो दूसरा परिश्रम करे। हाथ के श्रम को गांधी जी ने बहुत महत्व दिया। गांधी जी के अनुसार कि श्रम का कोई प्रतिमूल्य नहीं हो सकता है। क्या आप कल से माँ को ये कहें कि माँ तेने मेरा लालन पालन किया, ब्रोटअप किया, मुझे मेरी केयरिंग की, ले मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, इज इट पॉसिबल? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? और कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ था जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वह बिल्कुल डिक्लाइन की ओर है। अगर ऐसी बातें आज कही जाती हैं, अगर कहीं फिल्मों में या किसी सीरियल में ऐसी बातें आ रही हैं, तो मैं सोचता हूँ ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन वैल्यूज की ये एक डिक्लाइन है। तो इसलिए आप माँ के उसको नहीं कह सकते हैं। श्रम की महत्ता को समझना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए। तो गांधी दर्शन में श्रम की महत्ता है। अगर आप गांधी के द्वारा जो टॉलस्टॉय का और रस्किन का टू द लास्ट है उसको आप पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी इसको कितना महत्व देते थे। और गांधी के आश्रम तो सारे श्रम पर आधारित है। जो साबरमती का आश्रम रहा, फिर बाद में वर्धा चले गए, 20 से 35-36 तक साबरमती वो क्या आश्रम में रहा, सॉरी ये 30, 31, 32, 33 तक। फिर उसके बाद वर्धा का आश्रम चला गया, क्योंकि गांधी जी ने कसम प्रोमिस कर लिया था कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी मैं साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा। तो वर्धा महाराष्ट्र में है, साबरमती गुजरात अहमदाबाद में है। तो वहां पर उन आश्रमों की जो व्यवस्था है, अभी एक किताब निकली है आश्रमों पर, जो कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर शर्मा जी ने निकाली है। तो वो आश्रम पे पूरी रिसर्च की है कि आश्रम में कैसे तो सफाई है, कैसे काम होते थे, और हर व्यक्ति को काम करना। गांधी जी खुद काम करते थे। गांधी जी ने कहा भाई मैं स्वयं काम करता हूँ। गांधी जी के आप ताजुब होगा आपको कि गांधी जी ने नर्सिंग का कोर्स साउथ अफ्रीका में रहते हुए कर लिया था। और गांधी जी जब एक प्रिटोरिया में थे, तो एक नाई ने जो हेयर कटर था सैलून में गए, उसने मना कर दिया कि जो काले लोग हैं उनके बाल हम नहीं काटेंगे। तो गांधी जी
ने बाल काटना सीख लिया, पर वो बराबर नहीं कटे। तो वो जब कोर्ट गए तो लोगों ने कहा कि मिस्टर गांधी ये क्या किया तुमने, तुम्हारे बाल पीछे कहाँ चले गए, कोई बकरी खा गई? फिर उन्होंने वो बाल अच्छी तरह काटना सीख गए। इसी प्रकार से उन्हें कपड़े धोना नहीं आते थे, तो साउथ अफ्रीका में रहते हुए एक किताब लाए, एक बुक खरीदी, ही परचेज ए बुक, और उसमें किस तरह से जो क्लॉथ है उनको वॉश किया जाता है और वह लिया, और फिर प्रेस कैसे की जाती है ये भी उन्होंने पढ़ा और उन्होंने भी सीखा, और ये सारी बातें हैं। और यहाँ तक कि वह जूते चप्पल भी बनाने लग गए, और जेलर जो वहां का था स्मट, उसको वापस जब उनको रिहा किया गया तो उसने उनको जूतियां तक दे दी। तो ये श्रम की महत्ता है। हम ये चीज शायद नहीं समझ पाए, सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर का, श्रम अपने आप में उसको हमने एक दोजम दर्जे का, नीचे के दर्जे को, श्रम को मान लिया। और मैं आपसे निवेदन करूं कि श्रम के महत्व के बिना न तो आत्मनिर्भर हो पाएंगे, न आत्मविश्वास। आपने देखा होगा जो लोग काम करते हैं, इसीलिए महिलाओं में ज्यादा आत्मविश्वास होता है, क्योंकि वह घर के भी काम करती है, और जो वर्किंग क्लास विमेन है वह बाहर का भी काम करती है, और वह पढ़ाई भी करती है, तो वह पीएचडी भी करती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ऐसे ही नहीं आया, ये आया है आपके श्रम के महत्व को समझ के। और तो श्रम की विवेचना से जो टॉलस्टॉय ने की है, जो रस्किन ने की है, उसको उन्होंने समझा है। और यही कारण है कि गांधी जी का जो श्रम शास्त्र है वो उत्पादन बढ़ाने पे बल देता है, उपभोग बढ़ाने पर। देखिए, आप आत्मनिर्भर बनने के लिए भी जरूरी है कि हम संयमित, मर्यादित उपभोग करें, विद इन द लिमिट वी यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि हम जो उसके कोई लिमिट नहीं है, ऐसा हम करें। अधिक उत्पादन का अधिकतम वितरण किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है वो मिले। गांधी जी ने एक बार कहा कि मैं तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूँ। क्या मूल मंत्र? कि मूल मंत्र ये देता हूँ कि जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए क्या करना है, तो अपनी आंखें बंद करो और जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ उस व्यक्ति के बारे में सोचो, और ये सोचो कि क्या वो जो दीनहीन और कष्ट में है, क्या तुम्हारे उठाए गए कदम, तुम जो स्टेप उठा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे ऑफिशियल की तरफ से हो, चाहे सोशल वर्कर के, वह क्या उसको लाभ देंगे, क्या उसको कुछ राहत देंगे, क्या उसको कुछ रिलीफ देंगे? ऐसी बात है। तो गांधी दर्शन श्रम को बहुत पवित्र मानता है। गांधी की फिलोसॉफी श्रम को बहुत पवित्र मानता है। श्रम में शर्म न होना चाहिए, श्रम बहुत जरूरी है, और अहिंसापूर्ण श्रम ही गांधी दर्शन का मूल आधार है। इसलिए गांधी ने क्या, जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में जो निष्काम कर्म की बात कही गई है, गांधी ने उसी निष्काम कर्म को, जिसमें बिना फल प्राप्ति के श्रम की बात कही है, उसको ही माना। और इसीलिए गांधी ने, जब हम सत्य में वो जयते बोलते हैं, तो गांधी ने ये भी कहा, श्रम में वो जयते, श्रम की विजय हो, श्रम की विजय हो। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे, वो श्रम के महत्व को धीरे धीरे आजादी के बाद भूलते गए। परंतु जब ये कोरोना आया और जब मेड सर्वेंट भी घरों में आना बंद हो गई और कई सारी समस्याएं आई, तब लोगों को समझ में आ गया कि श्रम का क्या महत्व है। और शायद कई लोगों का जो स्वास्थ्य है वह भी ठीक रहा। मैं एक निवेदन और करूं कि कोरोना में अगर जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लेबर क्लास है, जो फार्मर्स हैं, उनको कोरोना का प्रभाव कम हुआ, क्योंकि वह श्रम करते हैं, काम करते हैं, और श्रम करने से उन पर उनकी इम्यूनिटी, उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता, उनकी इम्यूनिटी काफी मजबूत रही, और इम्यूनिटी मजबूत रहने से वह कोरोना के प्रभाव से, उस बीमारी से, कोविड से वह दूर रहे। तो गांधी जी की जो प्लानिंग थी वह विलेज पर आधारित थी, ग्रामीण भारत। उन्होंने जो ये स्मार्ट सिटी जो ये सारी बातें हैं, इसका सपना नहीं देखा। उन्होंने जो गांवों को स्मार्ट बनाने की, ग्रामीण
ग्रामीण भारत कैसा हो, जिसमें ग्रामीण भारत की जो प्लानिंग हो वह ऊपर से न बन के आवे, दिल्ली से नहीं बन के आवे, राजधानियों से नहीं बन के आवे, बल्कि वह लोग बनावे। तो प्लानिंग ऑफ विलेज फ्रॉम बिलो लेवल, नीचे से वह प्लानिंग बने, नीचे से वह लोग बने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। हर गांव की हर एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम है। और दूसरी बात जो है वह गांव अपनी स्थानीय जो रिसोर्सेज है, लोकल रिसोर्सेज है, उन लोकल रिसोर्सेज का उपयोग अपने जो नीड्स है उनकी, उनके हिसाब से कर सकते थे, एज पर देयर नीड्स। इसके अलावा वह चाहते थे कि जो विलेज है वह सेल्फ रिलायंस बने, आत्मनिर्भर बने। और इसका मतलब ये था कि हम जितना बाहर से लेते हैं उतना देना सीखे। यदि हम अनाज बाहर से लेते हैं तो हम अगर तेल के तैयारी कर रहे हैं, तेल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वह हम तेल बेचें। तो इस तरह से एक उसमें बराबर श्रम बराबर रहे, और इसीलिए वह गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। तो व्यवसाय की सुगमता भी हो, जीवन की सुगमता भी हो, ये वह चाहते हैं। और गांव जब है गुड गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस होगी सत्य और अहिंसा के आधार पर, ये गुड गवर्नेंस होगी पंचायत राज प्रणाली के आधार पर। ये गुड गवर्नेंस गांव की कब होगी और कब आत्मनिर्भर रहेंगे, जब गांव को आप पंचायत में उनको अपने निर्णय करने का अधिकार दोगे, उनके अपने, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो भी उनके पास बराबर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो सहकारिता है, सहकारिता में वह चाहते थे सहकारिता बढ़े, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो। और इस कोऑपरेटिव फार्मिंग का नारा क्या था, स्लोगन क्या था? इसका नारा था सब एक के लिए और एक सबके लिए। ये बात उन्होंने जो है गांधी ने सोची कि क्योंकि जब कोऑपरेटिव आधार पर होगा, मान लो आज जो एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, ट्रैक्टर है, हर आदमी जिसके 2 बीघा 4 बीघा जमीन है वो तो नहीं रख सकता है। पर ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, तो उस कोऑपरेटिव फार्मिंग में वह लोग ऐसा कर सकते हैं और आपस में मिलजुल कर एक ही ट्रैक्टर से, एक ही टूल से, या अनाज साफ करने वाली मशीन से, या और भी जो आजकल आ रही है उससे काम चला सकते हैं। इसलिए वह चाहते थे कि जो फार्मिंग है, जो खेती है, वह कम्युनिटी फार्मिंग हो, वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न हो, और ये सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो प्लानिंग है वो विकेंद्रीकृत होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा में भी जो नई बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम की बात करी। बुनियादी तालीम में क्या है कि शिक्षा, जो बच्चे की मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको प्रारंभ में वही दी जाए और बाद में अंग्रेजी या अन्य भाषा से शिक्षा दी जाए। और प्रारंभिक में जो 7 साल की उम्र तक शिक्षा फ्री हो, और हायर एजुकेशन में को उसको प्राइवेट छोड़ देना चाहिए, और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन को अपने खुद ही तय करना चाहिए, और उसके अपने रिसोर्सेज भी खुद ही निकालना चाहिए। तो ये जो शिक्षा या सारा समग्र गांधी फिलोसॉफी है, अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय न भी हो तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो उनका जो संकल्प था, जो कंसेप्ट था, जो फार्मुलेट किया उन्होंने, वो ये था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर हमारी जो प्लानिंग होना चाहिए। गांधी जी की फिलोसॉफी में ये तो बात सभी जानते हैं कि अहिंसा जो है वो सर्वोपरि है, सत्य और अहिंसा। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर से बातचीत हुई तो पूछा, और उन्होंने कहा सत्य के बारे में, तो वो कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है। पर थोड़े समय बाद वो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज द गॉड, ट्रूथ इज द गॉड। गांधी की एक सबसे बड़ी बात है जो आप किसी भी दर्शन में शायद न देख पाएंगे, ये वंडरफुल है, बहुत ही एस्टोनाइजिंग है, बहुत रिमार्केबल है। क्या? गांधी लगातार फ्लेक्सिबिलिटी है, गांधी बदल रहे हैं, गांधी का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। गांधी एक जगह पे हरिजन में लिखते हैं, हरिजन पत्र उन्होंने निकाला था, तो उसमें लिखते हैं कि भाई अगर मेरी 2 बातों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो तो आप बात वाली बात माने जो बात की तारीख में की गई, क्योंकि मैं लगातार प्रयोग कर रहा हूँ, मैं लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंट के बाद अगर मुझे पुरानी बात
अगर पुरानी बात मुझे सही नहीं लगती है, सही प्रतीत नहीं होती, तो मैं उसको बदल लेता हूँ, नई बात करता हूँ, नई बात कहता हूँ। ये आप ये देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी बात है गांधी की, कि उनमें एक लचील, किसी भी जो थिंकर हुए हैं उसमें आप ये देखेंगे कि एक बार कह दिए तो कह दिया, गांधी लग, तो इसीलिए उनकी किताब का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। ये प्रयोग हुए हैं। अब प्रयोग में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, बदलती रहते हैं डाटा, और वो नई बात करता है कि भाई अब मुझे ये चीज मिली है, अब ये चीज मिली है। ये गांधी की बहुत बड़ी बात है, और गांधी इसी आधार पर ये जो उनकी रेलिवेंसी है वह इसीलिए है कि वह आज भी भारत में ये तो अच्छा लगता है कि बड़ी फैक्ट्रियां लगे ये हो, परंतु आज भी गांधी जो है बहुत ही समसामयिक है, कंटेम्परेरी है, उनकी सारी बातें, उनकी फिलोसॉफी, और साथ में गांधी के कई बातों को गांधी के अपनाए बिना, गांधीज्म को अपनाए बिना, गांधी फिलोसॉफी पे चले बिना आत्मनिर्भर भारत जिसमें हम कह रहे हैं, क्योंकि वह आत्मनिर्भर ही बनाना चाहते थे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, सारा कपड़ा विदेशों में जा रहा था, यानी वहां से कपड़ा आ रहा था, और कच्चा सामान कॉटन हमारी जा रही थी। और जो अगर आप पढ़ेंगे ताराचंद के वॉल्यूम को, फ्रीडम स्ट्रगल के, तो वह बता रहे कि कितनी गांठें औरंगजेब के काल तक की, कितनी हमारा जो माल है, कपड़े तैयार किया हुआ, चाहे मलमल हो, चाहे दूसरे कपड़े हो, चाहे कॉटन हो, चाहे साटन हो, ये सब विदेशों में, यूरोप में जाते थे, और पूरे छटे पड़े थे यूरोप के बाजार भारतीय वस्त्रों से। भारतीय वस्त्रों को एकदम रिवर्स में लाया गया, और जब मैनचेस्टर और लिवरपूल की फैक्ट्रियां चली, तो कुल मिला के हम दरिद्र होते चले गए, और दरिद्रता की ऐसी स्थिति हुई कि कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वह ले जा रहे हैं, पक्का माल महंगे दामों पर हमें खरीदना पड़ रहा है, और हमारे किसान गरीब होते गए। जो एक गरीबी की रेखा है, जिसको दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश रूल में बताया है, दादा भाई नेहरू जी की जो ट्रेन वेल्थ ऑफ ड्रेन थ्योरी थी, वेल्थ ऑफ ड्रेन थ्योरी यही थी कि किस तरह से भारत के धन का निष्कासन हुआ और भारत गरीब हो गया। उसी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मविश्वासी बनाने के लिए, उसी भारत को समृद्ध बनाने के लिए, उसी भारत को प्रोस्परस बनाने के लिए, उसी बेल्ट को रोकने के लिए गांधी ने जो फार्मूला दिया, उस फार्मूले में एक फार्मूला था ग्रामोद्योग, और दूसरा था चरखा। वो कहते हैं कि मैं एक समय भोजन कर लूंगा, पर चरखा काटने से नहीं रुकूंगा। वो कहते हैं समस्त देशवासियों को चाहिए कि आधा घंटा रोज वो चरखा काटे। देखिए, आप चरखा काटने से क्या होगा, चरखा काटने से वो ये कहते हैं कि आपको गरीब के दर्शन होंगे, एक समझ आएगी। जब आप आधा घंटा मौन, याद रखिए आप, गांधी सोमवार को, मंडे के दिन मौन धारण करते थे आधे घंटा। बड़े विचित्र लगता था लोगों को। एक बार एक अंग्रेज गया, उसने बड़ा रिपोर्टर था, एक पेपर से आया था, करस्पोंडेंट, और इंटरव्यू लेना था। गांधी जी का टाइम हो गया शाम का, उन्होंने कहा मेरे को बकरी देने का, चारा देने का समय आ गया, प्रार्थना का समय आ गया। वो तो जो मैं निवेदन, मेरा जो सबमिशन था, सबमिशन ये था कि गांधी बहुत ही एक व्यवहारिक थे। ही वाज मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन इन हिज लाइफ, इन कैरियर, इन थॉट्स। वो बहुत ही एक प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। और गांधी ने जो ये दांडी मार्च किया, दांडी मार्च 1930 को, मार्च से अप्रैल, 6 अप्रैल को चला, 12 मार्च को चला, 78 लोग साथ गए, महिलाएं भी साथ हो गई। तो वहां जाकर उन्होंने नमक बनाया। अब आप कहेंगे नमक बनाने से क्या हुआ, तो जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो एक प्रोफेसर ने बताया था कि नमक बनाने का मतलब था चैलेंज द ब्रिटिश रूल। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को एक चुनौती प्रदान की। क्या चुनौती? कि हम तुम्हारे कानून जो है, नमक सबको खरीदना जरूरी हो गया, नमक महंगा था, देख क्या। आज दुर्भाग्य देश का, जिस गांधी के घर में, धरती पर गांधी ने जन्म लिया, हम 22 रुपए किलो का नमक खा रहे हैं, जो 2 पैसे किलो का नमक बनता आ रहा था। 2 रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो ये जो गांधी ने एक चुनौती दी, तो जब क्या हुआ कि
सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि गांधी was our nominee. Gandhi will he will be the representative in second round table conference. तो वो गए, इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर पहले तो मना कर दिया कि आप ऐसे कपड़ों में कैसे मिलोगे, धोती में, कोई आपके पास कोई एक ड्रेस कोड होता है नहीं है आपके। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो इसमें ही आया हूँ, इसी में जाऊंगा। अंत में मिलान हुआ। तो जब मिलान हुआ तो उसमें गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो उनके लिए दोपहर का समय था तो उनके लिए तो नींबू का पानी आया, वाटर विद लेमन आया, और जो हमारा वाइस राय थे उनके लिए चाय आई। अब गांधी ने क्या किया, गांधी की जो सबसे बड़ी बात है, गांधी ने एक पुड़िया निकाली जेब से छोटी सी और उसमें से कुछ डाला। तो उसने ये पूछा वाइस राय ने, व्हाट यू पोर्ड इट इन द वाटर, आपने पानी में क्या डाला। तो गांधी टोल्ड, गांधी क्या कहते हैं कि जिस कानून पर आपने प्रतिबंध लगाया था, नमक कानून पे, आई पोर्ड दैट साल्ट दैट यू बेंड, आपने जिस पर प्रतिबंध लगाया वो मैंने साथ डाल। ये देखिए आप एक चुनौती, एक विश्वास देखिए आप गांधी का, कि गांधी में कितना बड़ा विश्वास था कि उन्होंने जो है उसको नमक को डाला उसी के सामने जो बहुत ही पावरफुल जो है वाइस राय था कि व्हाट यू पोर्ड इन द वाटर। तब गांधी ने उत्तर दिया, गांधी टोल्ड इन वायलेशन ऑफ योर सॉल्ट लॉ, आपका जो साल्ट का कानून है उसका वायलेशन कर रहा है। देखिए अब उसके सामने ये सबसे बड़ी बात है, द साल्ट आई मेड आई हैव पुट दैट साल्ट इन इट, जो मैंने बनाया वो उसमें डाल दिया। अब एक चुनौती है ये, एक देखिए आप एक सत्ता को जब एक छोटी सी भी चुनौती देते हैं, एक उंगली की ओर इशारा करते हैं, एक उंगली भी उठाते हैं, 10 लाख लोगों में, 10 करोड़ लोगों में, 10,000 लोगों में, 1,000 लोगों में एक व्यक्ति भी अगर चुनौती करता है तो इसका मतलब है कि वह चुनौती एक दिन बड़ी चुनौती बनने वाली है, अगर किसी ने पूरी मन की ताकत। इसलिए तो गांधी मन की बात करता है। गांधी उन नेताओं की तरह नहीं है जैसा आज हम देखते हैं, वह एक मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, हिंसा पर त्याग की बात करते हैं, वो दूसरों के लिए त्याग की बात करते हैं। वैष्णव जन देने कहिए, पीर पराई न जाने। वैष्णव कौन है? जो पीर पराई को जानता है, जो दूसरे के दर्द को जानता। फिर आगे वो क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि जो अगर उपकार तेने किया है तो उसको तू उपकार को भूल जा, उपकार मत गिना। ये एक बहुत बड़ी बात थी गांधी के। गांधी एक अद्भुत व्यक्ति थे और इसीलिए आइंस्टीन को कहना पड़ा कि भाई धरती पर मैं नहीं बता सकता हूं कि अब आगे कौन कैसा होगा, पर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि एक हाड़ मास का आदमी भी यहाँ पर हुआ है। गांधी पर 100 वॉल्यूम 100 वॉल्यूम निकले आजादी के बाद, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, स्वामीनाथन ने एडिट किए और वह उपलब्ध है। 100 वॉल्यूम से बहुत बड़े बड़े। और गांधी पर आप देखिए कि मैं आपको एक निवेदन करूं कि आज हिटलर था, मुसोलिनी था, नेपोलियन बोनापार्ट था, किसके बारे में चर्चा होती है? आपने देखा कभी जर्मनी में आपने सुना कि हिटलर पे चर्चा इस तरह से हो रही है? गांधी की आज 151 जयंती मना ली, 150 खत्म हमने, और उस पर हिटलर पर, मुसोलिनी पर, या नेपोलियन बोनापार्ट जिसने यूरोप के अंदर 40 युद्धों को जीता, ही वाज द विनर ऑफ 40 बैटल। तो कभी इतनी बड़ी चर्चा होती रही है क्या? क्यों? क्योंकि गांधी के रिलेवेंट थे। आपने घर में भी जब कभी लड़ाई हो जाती है मित्रों में, पति पत्नी में, या किसी में, या और भाई बहनों में, तो उसके बाद क्या होता है? वह समझौता चाहते हैं, वह पीस चाहते हैं, वह शांति चाहते हैं। तो युद्धों के बाद आदमी क्या चाहता है? शांति। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन।
1922 में वुड्रो विल्सन के जो पॉइंट थे 40 पॉइंट्स, उसमें एक था कि विश्व में ऐसी कोई संस्था का स्थापना किया जाए कि जो पीस को स्थापित कर सके, जो विवादों को सोल्व कर सके, निचोड़ कर सके। फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। फिर इस तरह से चीजें चलती रही, युद्ध होते रहे, सब होते रहे, विवाद होते रहे, पर ये लोगों ने महसूस किया कि अंत में शांति चाहिए, और जब शांति होगी तो विकास होगा, तो डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, विश्व का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब आप युद्धों में ही फंसे रहेंगे तो डेवलप। इसलिए गांधी युद्ध की बात नहीं, गांधी युद्धों से परहेज करते। गांधी का जो आंदोलन अहिंसात्मक है, और जिसमें वह अहिंसात्मक इस तरह का जिसमें विरोधी से भी प्रेम किया है, विरोधी को भी अपना समझा है। तो पापी से घृणा नहीं की है, पाप से घृणा की गई है। ये गांधी एक जबरदस्त व्यक्ति थे। आप देखिए कि गांधी जो है आप कि एक कैसी समझ वाला व्यक्ति था गांधी, जिसको दुर्भाग्य रहा कि जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी आ गई है आजकल आपके, ये व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, ये मैसेज किस तरह के आते हैं, और उसमें पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को आप टाल नहीं सकते हैं, सत्य को आप मिटा नहीं सकते हैं, आप सत्य तो सत्य ही रहेगा। ये बात को गांधी अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए गांधी ने जो है समय समय पर जो काम उठाए, चाहे हरिजन का उद्धार हो। देखिए आप हरिजन की क्या कितनी खराब स्थिति, कैसे आप एक स्वावलंबी भारत बनाएंगे। स्वावलंबी भारत कब बनेगा? जब समाज का हर वर्ग उससे समावेशी विकास जिसे हम कहते हैं, जिसमें सबका डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ऐसी बात हो, तब जाके आप चाहेंगे। तो गांधी ने इसीलिए जो आपके हरिजन है, उन हरिजनों के उद्धार की बात करी। अब मंदिर तो जाना तो बहुत दूर की बात है, हरिजन का, हरिजन शब्द ही दिया उन्होंने उनको, जो बिल्कुल अछूत थे, अनटचेबल थे, जो गंदगी साफ करते थे, और इसीलिए उन्होंने हरिजन, हरि के हैं जन, ईश्वर के, और घनश्याम दास बिरला जैसे आदमी को जोड़ दिया। देखिए आप, घनश्याम दास बिरला को 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, बिरला को जोड़ दिया। पंडित गोविंद भाई वल्लभ भाई पंत है ना, पंडित गोपीनाथ बरदोले, राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने हमारे प्रथम, जगजीवन राम जो बाद में रक्षा मंत्री भी बने, वियोग हरि सेनापति 12 है ना, तमिलनाडु में वेदनाथ अय्यर, महाराष्ट्र में काका साहब बर्वे, आप देखिए मध्य प्रदेश में दाते, ये सब लोग हरिजनों के उद्धार में लग गए। आप ये देखिए कि बिरला परिवार पूरा लगा रहा। तो इसलिए बिना, जैसा कि मैडम ने अभी बताया था, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के आश्रम तूने कर दिया कमाल। वास्तव में साबरमती के आश्रम ने जो है ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सर्वोदय और सत्याग्रह, दीज आर द 4 words which have their meanings and their significance constitute गांधी। ये 4 चीजों ने गांधी को बना दिया। इन्होंने ट्रुथ ने, नॉन वायलेंस ने, सत्याग्रह ने, सर्वोदय ने। These are indeed the 4 pillars of Gandhian thoughts। गांधीयन थॉट्स के ये 4 पिलर हैं। सत्य अहिंसा को अपनाकर, सत्य अहिंसा को अपनाकर, ब्रिटिश राष्ट्र की शक्ति को झुकाकर आजादी तुम दिला गए हो, राष्ट्रपिता तुम कहलाए, राष्ट्रपिता तुम कहलाए। राष्ट्रपिता ये शब्द ही टैगोर ने दिया। यद्यपि टैगोर गांधी में कुछ मूलभूत अंतर है। टैगोर कभी भी नहीं मानते कि चरखे से आजादी मिल जाएगी, चरखा उपयोगी है, ये है, पर चरखे ने बाद में जो कमाल किया। और वो देश हमारा ऐसा कि हर गांव या खुशहाल बने, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात सोवियत यूनिवर्सिटी ने जो विषय दिया है, वह आत्मनिर्भर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़े। तो वो देश हमारा ऐसा कि हर गांव या खुशहाल बने, हर एक को काम मिले, हर एक को काम मिले, ऐसा सपना सजाने को गांधी ने जन्म लिया था। ऐसा सपना सजाने को
गांधी ने जन्म लिया था, भारत का भाग्य जगाने को गांधी ने कर्म किया था। कर्म या फिर श्रम की बात कह रहा हूं मैं आपको कि कर्म की बात करी है। गांधी ने जन्म लिया था, भारत के भाग्य जगाने को गांधी ने कर्म किया था। गांधी ने देखे जो सपने वह सच कर दिखलाए हैं। ऐसा नहीं कि खाली ऊपरी बातें करी हैं। दरिद्र नारायण के आंसू पोंछने, दरिद्र नारायण ये शब्द विवेकानंद ने गरीबों को दिया था 1893 के बाद। दरिद्र नारायण के आंसू पोंछने हैं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता सबको मिले, चरखा घर घर चले, चरखा घर घर चले, भारत राम राज्य की ओर बढ़े, बढ़ती बेरोजगारी विषमता मिटे, बढ़ती बेरोजगारी विषमता मिटे, गांधी और गांधी दर्शन को भारतवासी कभी न भूले, भारतवासी कभी न भूले। ये बात सोवियत यूनिवर्सिटी के जो नया विश्वविद्यालय है, उनके छात्र छात्राओं को भी चाहिए कि वह जो एक ट्रेंड चल गया गांधी को जेट करने का, वह इस बात को सोचे। ये दुर्भाग्य इस देश की धरती का कि यहाँ पर गोडसे को पूजा गया, गोडसे को उसके पुतले को, उसको जो है उसको भी पूजा गया। और ये सब चीजें आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि गोडसे ने पहले भी 3 बार गोली मारने की कोशिश की थी, हत्या करने की कोशिश की थी गांधी की। पर आप देखिए कि 20 जनवरी की घटना बताता हूं मैं आपको, सिर्फ उनके एसिसिनेशन से 10 दिन पहले की, जब उनको गोली दागी गई थी नाथूराम गोडसे और आप्टे को, फिर उनमें जेल सॉरी उनको फांसी हुई थी, तो तब ये पकड़ा गया था नाथूराम गोडसे, और वो चाकू आपको लेके आ गया, बाण सारी चीजें हो गई थी। पहले की बात है, चाकू तो बाद में तो इसने जो है गोलियां चलाई थी। गोलियां चलाई तो बिरला मंदिर के पास की घटना है, तो तुरंत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, एक नहीं कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्यों कि नहीं यहाँ तो आवाजें चली है पुलिस गोलियों की, क्योंकि वह आदमी जिसने गोली मारी वह नहीं जानता कि कितना बुरा काम कर रहा है। तो उन्होंने अपने जो श्रोता थे बहुत सारे, उन श्रोताओं को गांधी ने कहा आप इसे माफ करें, ये नहीं जानता है कि ये एक बुरा काम है। ये जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज एक अद्भुत चीज है कि गांधी ने उसको माफ किया, जबकि वह उस स्थिति में थे जब कि स्थितियां उनको लग रहा था कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है, क्योंकि वह 5वीं बार इस तरह की घटनाएं गांधी के साथ हो चुकी थी। 1933 से ही इस प्रकार की घटनाएं चल रही थी, परंतु ये जो है असहन शक्ति और आप में, उन्होंने सत्याग्रह के लिए ये प्रमुख बात मानी कि आप में सहन शक्ति है तो आप सत्याग्रह करें, आप में अगर घृणा का भाव नहीं तो आप सत्याग्रह करें, आप में प्रेम का भाव है तो आप सत्याग्रह करें, अगर आप में ये नहीं है तो आप सत्याग्रह कैसे कर सकते हैं, आप सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें थी जिस पर उन्होंने विचार किया। और गांधी जो हैं, चाहे उनका दक्षिण का सॉरी साउथ अफ्रीका का उनका जो 24 साल से अधिक समय का उनका प्रवास था, वहां का जो कुछ उन्होंने सीखा उसको भारत में बड़े स्तर पर लागू किया। अमेरिका में एक अध्येता हुआ, उसने एक किताब लिखी है, जेम्स डब्ल्यू डगलस। डगलस ने किताब लिखी गांधी एंड द अनस्पीकेबल, गांधी एंड द अनस्पीकेबल, हिज फाइनल एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो गांधी को जो मारा गया है वो उसी तरह से, देखिए आप, जो ऐसी ताकत, कोई एक पूरी ताकत थी, एक पूरा एक सोची समझी तरीके से मारने की बात थी। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट को बाद में जॉन एफ कैनेडी को मारा गया, जैसे मार्टिन लूथर किंग को मारा गया, जूनियर मार्टिन लूथर किंग को,
ऐसी जो लोग हैं वह ताकते थी, और इस हत्या के पीछे भी ऐसे खेल छिपे रहते हैं गांधी। पर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, गांधी जी खुद को बार बार जांचते हैं कि वह हिंसा के हाथों मौत का अहिंसक सामना करने के साधन में कहाँ तक, साधना में कहाँ तक पहुंचे हैं। यानी अगर कोई मारने आ जाए तो क्या वह घबराएंगे? क्या उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखेंगे? क्या उसके प्रति बुरा विचार रखेंगे? ये इस अहिंसक, ये इतनी बड़ी, ये जो हाइट थी, अद्भुत हाइट थी कि वह उसका सामना करने के लिए तैयार है। और ये साहस अगर था तो गांधी में था। और गांधी को अगर आप महात्मा कहते हैं तो महात्मा का यही कसौटी है, यही बात है कि वह महात्मा कहने लायक बने। महात्मा को कहने का मतलब यही था कि उन्होंने आपको उस स्तर तक पहुंचा दिया था कि मन में ऐसे विचार न आए, और वह उस हिंसा के हाथों मौत को भी सामना एक अहिंसक तरीके से करने के लिए तैयार हो गए। ये अद्भुत बात थी। जो गांधी ने जो बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं, जो जिसको कहते हैं आप रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव वर्क, आजादी के अलावा, आजादी के अलावा कई न्यूज़पेपर की शुरुआत तो उन्होंने की है। इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है, इसके अलावा आपके गुजराती में नवजीवन, इनकी उन्होंने हरिजन पत्र तो बहुत लंबे समय चला। यंग इंडिया भी निकाला उन्होंने, ऐसे पत्रों की शुरुआत करी। और उनके जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आप भूल भी जाए कि गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, फ्रीडम स्ट्रगल के माध्यम से उनकी एक बड़ी उनके बड़े रोल के साथ हमें इंडिपेंडेंस अचीव हुई, अगर ये भी भूल जाए तो आप ये सब माने कि उन्होंने जो रचनात्मक कार्यक्रम किए वो अद्भुत है। वो इतने सारे हैं कि हम सोच ही नहीं सकते हैं। वह कौमी एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 1924 में 31 दिन का उपवास कर दिया। अब देखिए, जिस आदमी ने 5 साल से अधिक तो उपवास, जब वो अफ्रीका में थे तो एक ही टाइम उन्होंने कई महीनों तक एक ही समय भोजन किया। कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वह, और इसलिए वह शिक्षा में क्या कहते हैं, वह एजुकेशन में कहते हैं कि भाई आप किसी धर्म की शिक्षा न दें, शिक्षा विद्यार्थियों को आप जो धर्म की जो एसेंस है उनको ही बतावें। अनटचेबल का तो मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे उन्होंने मंदिरों में प्रवेश के लिए भेजा। विनोबा भावे को भेजा था, तो विनोबा भावे जो गए तो विनोबा भावे पे तो लाठियां पंडों ने, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कौन करने देते, मंदिरों में प्रवेश तो बहुत मुश्किल काम था उस जमाने में, इसलिए मंदिरों का प्रवेश एक कठिन काम था। और इसलिए क्या हुआ कि जब बिहार के वेदनाथ धाम मंदिर में आचार्य विनोबा भावे को भेजा गया और उन्होंने वहाँ हरिजन भाइयों को साथ लिया और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन पर लाठियां लगाई गई, पांडे सब बिखर पड़े। और इससे आजीवन उनकी जो केयरिंग पावर थी, श्रवण शक्ति, वह बहुत हद तक डैमेज हो गई। मद्य निषेध, वो नहीं चाहते थे कि शराब पी जाए, और शराब से होने वाले नुकसानों से वह परिचित थे। उन्होंने इसका जो नीचे के तबके हैं उनको, और उनके बारे में काफी कुछ देखा है। खादी, खादी को तो वह बहुत ज्यादा मानते थे, और इससे वह मानते थे कि स्वदेशी आंदोलन के तहत खादी बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता और समानता। और यहीं के साथ वह ग्रामोद्योग, जो कुटेज इंडस्ट्रीज हैं जो गांव में तैयार हो सकती हैं, जो गांव में काम किए जा सकते हैं, ये कोटेज इंडस्ट्रीज और खादी, ये दोनों के द्वारा जो विलेज मैन हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी इनकम की जो मीन्स है, जो साधन है, वो बढ़ाए जा सकते हैं। बुनियादी तालीम की मैंने बात बताई है, गाँव में सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन, नारी का उत्थान, आरोग्य के नियमों का, जब उनका लड़का ही बीमार साउथ अफ्रीका में ज्यादा पड़ गया मनी भाई, तो अभी उन्होंने आरोग्य के द्वारा ही, नेचुरोपैथी के द्वारा ही उसका इलाज, ट्रीटमेंट कर दिया। और आप देखिए कि डॉक्टर ने कहा कि भाई इनके बेटे का जब बीमार ज्यादा हो गया तो अंडे इत्यादि खिलाने पड़ेंगे। गांधी जी ने कहा ये बिल्कुल संभव नहीं, अगर तो किसान भी मर जाएगा, मर भी जाए तो भी इसे नहीं खिलाए जाएंगे।
तो प्रांतीय भाषाओं का संरक्षण है कि भाई जो ये हमारी जो प्रोविंशियल लैंग्वेज है ये बढ़ती रहना चाहिए। इकोनॉमिक इक्विलिटी है, किसान और मजदूरों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गांधी ने। देखिए गांधी की क्या ताकत थी, गांधी की ताकत थी कि वो आपके साथ बैठ गए तो आप जैसे हो गए। गांधी की बहुत बड़ी ताकत, वो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। अहमदाबाद में जो है मजदूरों ने आंदोलन करवाया उन्होंने, क्योंकि जो मालिक थे वो कम देते थे कई तरह के उन पर वेजेज में और काम के घंटे, तो वो सारी बातें थी। तो गांधी ने, जबकि वह जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे वो गांधी के अच्छे मित्र थे, पर उन पर दबाव डालाया और इस प्रकार से किसानों में तो चंपारण का आपको मालूम है, जो बिहार में चंपारण है वहां नील की खेती करवाते थे जबरदस्ती ब्रिटिश लोग। जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि किसानों से जबरदस्ती वह खेती कराई जाती थी, या वह खेती करने के लिए 3/20 भाग पर वो करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए प्रॉफिटेबल। तो नील की खेती करते थे। आपको पता नहीं है, जो लोग नई जनरेशन के, मैंने देखे हैं बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे खेतों के पास, और वहां पर जो नील की खेती जो होती थी उसके बाद उसको नील को तैयार करना जाता था डिटर्जेंट और इसके रूप में, रंग के कलर केमिकल्स के रूप में काम आती थी। ये नहीं कि व्हाइटनेस करने, कई सारी तरह से ये काम आती थी नील। तो उनके चंपारण में किसानों को जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास बार बार जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये बात है आप कुछ करो करो, तब वह राजेंद्र प्रसाद, उसी समय जो राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उसी समय उभरते हैं। और एक बात और यहीं पे मैं बताना चाहूँ कि गांधी जी का ओरा कितना बड़ा था। देखिए आप, गांधी जी का ओरा तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। गांधी जी के साथ देश का, विश्व का, चार्ली चैपलिन मिल लिया गांधी जी से। आप देखिए चार्ली चैपलिन ने पूछा कि भाई आपने मेरी किताब है, सॉरी मेरी फिल्म देखी है? तो चार्ली गांधी जी ने कहा भाई मैंने तुम्हारी फिल्में तो नहीं देखी है, पर गांधी जी ने जो उन्हें मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बताया, कि भाई इससे जो फैक्ट्री आ रही है ये इससे कई नुकसान, तब उसने जो मॉडर्न टाइम्स जो फिल्म बनाई थी, अगर मैं सही हूँ तो आप करेक्ट कर लें, तो वह फिल्म वह गांधी जी के प्रभाव से बनी। देखिए हिटलर उनसे मिलना चाह रहा है, आचार्य कृपलानी है, राजेंद्र बाबू है, नेहरू है, महादेव देसाई है, देशबंधु चितरंजन दास है, विठल भाई है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, हरिभाऊ उपाध्याय है, घनश्याम दास बिड़ला है, कमल नयन बजाज है, सुशीला नैयर है, विनोबा भावे है, जानकी देवी बजाज है, विष्णु प्रभाकर है, आदि आदि लोग जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो फ्रंटियर गांधी कहलाते थे वह है, अमृतलाल ठाकुर है, बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों लोग हैं जो गांधी जी के से प्रभावित हुए। अब गांधी जी के ओरे के बारे में विचार करें, है बात के साहित्यकारों में जो थे जिनेन्द्र, ये सारे लोग हैं, आप देखिए कि यानी ऐसा ओरा जो गांधी जी के पीछे चल दिया। जब मैं उसको पढ़ता हूँ महात्मा बुद्ध को, तो महात्मा बुद्ध के बारे में गाँव में चर्चा होती थी। जब महात्मा बुद्ध गाँव से निकलते थे, यह गेरुआ वस्त्रधारी, ये गेरुआ वस्त्रधारी कौन व्यक्ति जा रहा है, आओ हम चलें, इसे सुने, इसे देखें। यही बात मुझे जब मैं गांधी को पढ़ता हूँ तो याद आती है। लोग गांधी के पीछे, वो लोग भी गांधी के पीछे चल दिए जो गांधी के आलोचक थे। टैगोर में मैंने बताया, सुभाष चंद्र बोस को आप देखिए, है सुभाष चंद्र बोस के जो है, पर जब 48 में सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को जयंती आई तो गांधी ने उनको श्रद्धांजलि और बताया कि सुभाष चंद्र बोस एक अद्भुत व्यक्ति थे। तो उनके बारे में जो टिप्पणी की सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वह बताया कि मुझे किसी की, यानी वो किसी की वर्षगांठ नहीं मनाते थे, अपनी जन्म जयंती या किसी में भी, परंतु ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो एक गलत फीलिंग बता दी गई है आजकल, मैंने आपको कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो फैला दी ये सारी बातें, पर उन्होंने एक जगह लिखा कि सुभाष चंद्र बोस के लिए ऐसी वर्षगांठ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जो राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रतीक है, जिसके काम के बारे में लोग हमेशा याद रखेंगे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिखों को एक झंडे के नीचे लाकर भारतीयता का समर्थन किया। ये बात गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में 23 जनवरी को उनकी आती है जन्मदिन, तब 48 में अपने देश से 7 दिन पहले कही है। तो
ये एक ऐसा बड़ा ओरा आप देखिए कि CF एंड्रूज को उन्होंने पढ़ा, यानी ऐसे मीराबेन, विदेश से लोग आ रहे हैं, भारत के लोग हैं, हर देश प्रांत से लोग हैं, तमिलनाडु है तो इधर से आपके बिहार है, तो राजस्थान है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक लोग उनके फॉलोअर बन गए। तो इसलिए जब गांधी जाते थे, गांधी निकलते थे, एक धोती में, एक लाठी के साथ, एक घड़ी थी, कुछ भी नहीं थी। मैंने आपको बताया ना, वो आप जैसे हो सकते थे। अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चों के साथ बहुत बच्चों को भी समय देते थे, बच्चों लोगों को पता नहीं है, बच्चों को खिलाते थे। साउथ अफ्रीका में जब रहे, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बच्चों को आश्रम से जोड़ दिया, छोटे छोटे काम बच्चे करते थे। तो जब लोग वह जाते थे तो लोग उनके पीछे चल देते थे, वो लोग भी उनके पीछे चल देते थे जो क्रिटिक्स थे गांधी के। तो गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कल्पना वर्तमान में बहुत संभव नहीं है। कुछ लोगों की सेवा की, आदिवासियों की गौ सेवा संघ की स्थापना करी, हरिजन सेवा संघ की स्थापना, ग्रामोद्योग के लिए संघ बना लिया। आप देखिए लगातार काम करते रहे हैं और कितनी सारी चीजें एक साथ गांधी कर पाए हैं। तो ये था उनका एक टाइम मैनेजमेंट। वह ही वाज द बेस्ट मैनेजर। टाइम मैनेजमेंट उनके द्वारा हुआ। और R.K. नारायण जो भारत के प्रेसिडेंट बने, केरल के तिरुवनंतपुरम में पड़े थे। तो हरिजन सेवक संघ ने दिल्ली में आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम किया था R.K. नारायण का, जो भारत के प्रेसिडेंट थे आधुनिक भारत के। तो उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी नहीं होते तो मैं प्रेसिडेंट तो क्या, मैं आज किसी गांव में गाय चराता। क्यों? क्योंकि गांधी जी वो लिखते हैं एक जगह, अगर गांधी जी के हरिजन सेवक संघ का छात्रावास नहीं होता, हरिजन सेवक संघ का छात्रावास नहीं होता, हॉस्टल नहीं होता, स्टूडेंट हॉस्टल, तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं बनता, आज किसी गांव में गाय चरा रहा होता। तो ये आप देखिए कि ऐसे लोगों को जो डाउन प्रोडक्ट थे, बिल्कुल नीचे के तबके के थे, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते थे। हरिजन जो है, आप मालूम है बंगाल के अंदर लाठियां बजाकर निकलना पड़ता था ताकि लोग अपने घरों में बंद हो जाए। 12वीं शताब्दी में यही बात हो गई थी। मुकुंद लाट एक लेखक हुआ, उसने लिखा है कि इस तरह से बंगाल की स्थिति थी। वहां पे जमींदार वर्ग का बड़ा प्रभाव रहा बहुत लंबे समय तक, तो उनको निकलना पड़ता था। तो ये एक, तो गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं भाई जिन लोगों ने ज्यादा जुर्म हरिजनों पर या ऐसे लोगों पे किए, उनका कर्तव्य बन जाता है कि वह उनको अधिक लाभ दे, उनके लिए अधिक सुविधाएं जुटाए, उनके बारे में सोचे। वो जो हो गया वो तो हो गया, वह ये नहीं कह रहे कि भाई आप पर अत्याचार किए जाए, इसके पक्ष में नहीं है। गांधी बहुत क्लियर है। देखिए गांधी जी जब इंग्लैंड से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब साउथ अफ्रीका लौट रहे थे 1909 में, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर एक किताब लिख दी, स्वराज। स्वराज लिख दी साहब। अब स्वराज जो है एक छोटी किताब है, परंतु अभूतपूर्व किताब है गांधी फिलोसॉफी को समझने के लिए। जब इसके 25 साल पूरे हो गए, तो जब प्रेस वाले ने पूछा इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं किया, शायद एक शब्द कहीं चेंज किया जो किसी महिला के बारे में, कुछ भी। ये इतनी एक, ये कहिए कि जैसे कोई ग्रंथ होता है ऐसा जिसमें एक सदैव के लिए लिखा गया, सदैव के लिए लिखा गया स्वराज जो ग्रंथ था, वह गांधी ने लिखा। और गांधी का ये स्वराज एक दस्तावेज था, एक मूल दस्तावेज, ऐसा दस्तावेज जिसमें आर्थिक प्रगति, आर्थिक नीतियों की बात है, जिसमें एक भारतीय सोच है, जिसमें एक भारतीय आप कहेंगे स्वावलंबन की बात है, भारतीय की आत्मनिर्भरता की बात है, भारत के विकास का संभव की बात है, उसके एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। तो गांधी फिलोसॉफी को हम स्वराज के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर समय हो तो मैं आगे बोल सकता हूँ मैडम। गुंजन, डॉक्टर गुंजन। Yes, sir. हेलो। Please carry on, sir. Please. हाँ, या तो मैं सोचता हूँ कि ये आपके टॉपिक से काफी चीजें मैंने कोशिश की कि जो आपकी गाइडलाइन है वो उसके नाम से चला जाए। और तो
गांधी ने जो ये स्वराज पुस्तक लिखी हुई है, स्वराज में वो सब बातें हैं। और इसमें एक ये कहिए कि आज भी आप पढ़ेंगे, एक पतली किताब है। मैं तो कहता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय में भी इन किताबों को, 100 किताबों को कम से कम मंगाया जाए। बहुत नहीं के बराबर मूल्य की है ये, और इनको बांटा जाए बच्चों के अंदर, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए, आप स्वावलंबी मनुष्य का निर्माण करने हेतु श्रम आधारित आपको आर्थिक राजनीतिक जो श्रम पर आधारित, देखिए श्रम उनके लिए, श्रम से आप दूर नहीं जा सकते हैं। व्यवस्था को बनाने का उन्होंने ऐसा प्रयास किया जो श्रम आधारित हो। तो वह 7 सिंह, सोशल सिंह, 7 पाप मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 7 सोशल सिंह, 7 सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। क्या? सिद्धांतहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स नहीं होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। श्रमहीन संपत्ति, बिना श्रम के पैसे इकट्ठे हो गए, उसको वह गलत मानते हैं। विवेकहीन सुख, चरित्रहीन ज्ञान, नीतिहीन व्यापार, दयाहीन विज्ञान और त्यागहीन पूजा। देखिए गांधी कभी बहुत वहां गए, बिहार के मंदिर, यहाँ यूपी में, उसमें जो है अयोध्या या मंदिर में गए हुए, पर गांधी कभी किसी धर्म के, उनका जो राम है ना, जब लास्ट में भी हे राम बोला, तो ये राम लक्ष्मण पुत्र नहीं था, सॉरी दशरथ पुत्र नहीं था ये, बल्कि ये राम एक ईश्वर के रूप में नाम था। और रामायण को बहुत आदर्श मानते हैं, क्योंकि वह त्याग की बात। किसके त्याग है? देखिए आप, सीता का त्याग है, लक्ष्मण का त्याग है, राम का त्याग है, घर से निकले, 14 वर्ष वनवास में बिताए। ये त्याग है, त्याग के बाद ही वह जो है मूल्यों की स्थापना कर सकते। तो ये कहते हैं कि वह त्याग के बिना रावण जो है, रावण यानी एक बुराई, एक इविल, एक सिन, वह नहीं खत्म हो सकता है। इसलिए गांधी ने ये बात कही कि राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक समता भी, सामाजिक समरसता भी होती है। समाज में सामाजिक समरसता की स्थापना का जो प्रयत्न गांधी ने किया, वह अद्भुत था। तो गांधी यह बताते हैं कि, और ऐसा नहीं है कि गांधी एक नीरस व्यक्ति है, आप ये भी समझ लें। गांधी एक बड़े हास्य विनोद भी करते थे, छोटी छोटी बातों में हास्य विनोद था उसका। बच्चों के साथ जब बातें करते थे तो हास्य विनोद से बातें करते थे। तो एक हास्य विनोद भी था। ऐसा नहीं कि मोनोटोनी थी उनके जीवन में और सब कुछ वैसा था, परंतु गांधी एक युग थे, एक ईरा थे, एक इतिहास थे, एक हिस्ट्री थे। गांधी एक दर्शन है, एक युग है, एक इतिहास। वो एक मानव नहीं, एक संस्था है। वो एक मानव नहीं, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन। He created the institution. He was himself history. He was himself a age. एक युग थे, इसीलिए तो हम गांधीयन युग कहते हैं, गांधीयन एज कहते हैं। वह शायद ये कोई आश्चर्य नहीं, हम प्रेरणा के लिए गांधी की ओर आज फिर मुड़ रहे हैं। जब ये कोविड का दौर आया है, गांधी वाज ए विजनरी। रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी हाल ही में, गांधी, इट इज वेरी डिस्प्यूटेड बुक, एक विवादास्पद किताब है ये रामचंद्र गुहा की। रामचंद्र गुहा आजकल पेपर में लगातार कहीं न कहीं बने रहते हैं। उन्होंने लिखी गांधी डेट ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। गांधी के वो वर्ष जब दुनिया बदली। तो वह लिखते हैं, फिर भी सबके बावजूद गांधी की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं कहीं। गांधीवादी विजनरी, युग दृष्टा थे, एंड possessed a very powerful mind. He possessed a very powerful mind and thought deeply. और बहुत गहरे सोचते थे। Wrote on basic human issues and problem facing India in those times. भारत ने उन दिनों में जो समस्याएं देखी, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, जो मानवीय इशू थे,
उन सब पे बहुत गहराई से उन्होंने सोचा। देखिए गांधी कोई भी ऐसा पक्ष शायद गिरा हो जो गांधी ने नहीं सोचा हो। गांधी चाहे गायों का मामला हो, चाहे प्रकृति हो, वो कह रहे हैं कि आप प्रकृति का दोहन ना करना। कोई कह रहे हैं कि भाई जो नेचर है वो आपका पेट तो भर सकती है पर आपके लोभ का पेट नहीं भर सकती है। आप लोभी बनेंगे तो ये काम नहीं होगा। तो गांधी ने जो है अपने जो चाहे राजनीतिक विचार हो, उनके पॉलिटिकल थॉट हो, सोशल थॉट हो, इकोनॉमिक थॉट हो, उनके रिलीजन के बारे में थॉट हो, वह कभी भी ऐसे नहीं है जो आप ये कह रहे हैं कि देखिए सत्य ही ईश्वर है। अब वो कहते हैं देखिए ईश्वर को कोई माने न माने, एथिस्ट है, थिस्ट नहीं है, वह नहीं मानता है, वह चारों टाइप का आदमी है। तब भी बस ये तो नहीं कहेगा ना सत्य नहीं है, सत्य मत मानो, सत्य गलत है, सत्य झूठा है। तो ये तो नहीं कह रहा ना वह। तो ये बात वह कह रहे हैं और इसीलिए वह प्रार्थना सभा में भी हमेशा जो शाम को होती थी उस प्रार्थना सभा में ही मारे गए थे 30 जनवरी को 1948 को। तो वो एक सिद्धांत है, ही वाज द प्रिंसिपल, ही वाज द रिलीजन, ही वाज द लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका दे रहे हैं। हम कैसे लाइफ स्टाइल, हमारे जो क्या आर्ट ऑफ लाइफ है, हमारी आर्ट ऑफ लाइफ लिव है, वो कैसी रहे, इस सब के बारे में भी वो हमें बता रहे हैं। तो गांधी जो हैं वह इस रूप में भी अद्भुत है कि जो गांधी ने जब करो और मरो का मंत्र दिया तब 1942 में, तो ये एक यानी ये था जब ये दाव पे लग गया था कि गांधी अब शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 8-9 अगस्त को डू एंड डाई का 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट चला, ही लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डू एंड डाई का जब नारा चला तो अब उसे उन्हें लगा कि ये मेरे, देखिए आप इस समय, ये ठीक वह समय था जब गांधी को यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश, एक विचार चला था ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि भारत से बाहर भेज दिया जाए। अगर वहाँ उपवास भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी खबरें नहीं बनेगी। परंतु बाद में ये लगा कि अगर गांधी को शिफ्ट कर दिया गया भारत के बाहर तो गांधी जो है यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगी हालात को। देखिए आप, इन्होंने हजारों लोगों को मारा, काला पानी भेज दिया है ना, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज दिया, कई को मार दिया, कर दिया, पर गांधी को नहीं मार पाए। ऐसा नहीं था कि गांधी को हटाने की कोशिश उन्हें या और संगठनों ने नहीं की, परंतु गांधी को नहीं, क्योंकि गांधी का आधार जन आधार था, मास मूवमेंट था। 40 करोड़ की जनता में ज्यादातर गांधी के पक्ष में थे। उस जनता को संभालना, और जबकि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया है और ब्रिटिश को बुरी तरह से जर्मनों की खानी पड़ी है, जर्मन सेनाएं बहुत आगे बढ़ती थी, फ्रांस को, इंग्लैंड को बुरी तरह से पराजित कर रही थी प्रारंभ के दिनों में। जब 42 में पर्ल हार्बर पे आक्रमण के बाद जापान के, उसके बाद जब अमेरिका यूएसए आया, तो यूएसए ने जब एंटर किया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तब जाकर जो एलाइड पावर थी, जो मित्र राष्ट्र एलाइड पावर थी, उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। तो ऐसी स्थिति नहीं थी है जो गांधी को वहां भेज सके। इसलिए बाद में चर्चिल भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तो वह लिखते हैं कि वे हर भारतवासी को आह्वान करते कि कब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की आह्वान के समय जब उन्होंने उसको डिक्लेयर किया, आज से हमारे जीवन की हर सांस भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित है, हमारी हर सांस स्वतंत्रता के लिए समर्पित है, और उस ध्येय को हासिल करने के लिए जरूरत पड़ी तो हर व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ती है, और सर्वप्रथम मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। हर व्यक्ति को, देखिए कस्तूरबा से जब उस समय जब साउथ अफ्रीका में थे और फिनिक्स का आश्रम और बाद में टोल्स्टॉय फार्म बनाया उन्होंने, तो उसमें पूछ लिया भाई, और जब उन्होंने भाग लिया कुछ मोमेंट में जो वहाँ जोन्सबर्ग में हुए थे, और जब वहाँ ट्रांसवाल में उन्होंने वो जो काला कानून था जिसमें छाप लगाना, हाथ लगना, सर्टिफिकेट लगना जरूरी था, कि जो काले लोग है वे तो रखे, भारतीय लोग दूसरे है ना, और जो वहाँ के लोग है गोरे उनको वो सर्टिफिकेट, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, जला दिया सारे कानून को इकट्ठा। बाद में साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को लेने पड़े। जब आप साउथ अफ्रीका
जाएंगे। नेल्सन मंडेला जो वहाँ के प्रथम प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने बहुत कुछ चीजें नेहरू से ही ग्रहण की थी और गांधी से ग्रहण की थी, और गांधी की जो कई सारी बातें हैं जो विश्व में भारत की आजादी के बाद भी अपनाई गई, इसलिए गांधी आज रिलेवेंट हैं। तो गांधी अपनी जान की शुरुआत खुद को देने, तो उन्होंने कस्तूरबा से भी उस समय कहा, क्या तुम त्याग के लिए तैयार हो? तब कस्तूरबा ने कहा हम, और वह सारी महिलाएं जो सैकड़ों सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, वह सब कष्ट सहने को, त्याग करने को और अपनी जान को कुर्बान देने के लिए तैयार थे। जान लेने के लिए नहीं, जान लेने के लिए नहीं, क्योंकि वह अहिंसक है। और इसीलिए 1922 में जब चोरी चोरा का कांड हुआ, 5 फरवरी को पुलिस चौकी जला दी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने कहा मैं विड्रॉल करता हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो लोगों को बहुत, जवाहरलाल नेहरू और ये सुभाष चंद्र बोस, यंग जनरेशन थी, इनको बहुत बुरा लगा, है ना। और जो दूसरे लोग भी थे उनको बहुत बुरा लगा, यंग जनरेशन, पूरे भारत में गांधी की आलोचना भी हुई। ऐसा नहीं कि गांधी की आलोचना, देखिए आलोचना किसकी नहीं होती, पर गांधी की रेलिवेंसी कभी भी कम नहीं हुई है। और इस मौके पर मैं ये सारी बातें जो विभिन्न तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है डॉक्टर गुंजन के और सोभित यूनिवर्सिटी के आग्रह पर, और वहाँ के वाइस चांसलर के साहब जो रणजीत सिंह साहब है, प्रोफेसर, उन सबको तो मैं धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए दूंगा कि गांधी एक मेरा प्रिय विषय है। इट इज ए वेरी, आई लव इट रियली, गांधी। और मैं गांधी का नाम लेता हूँ सवेरे उठ के, आपको आश्चर्य होगा, जब मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ तो गांधी का नाम भी उसके साथ ही लेता हूँ। और गांधी को मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि गांधी को आप पढ़ें, खाली 1 पेज 2 पेज और व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त मैसेज से और ये ग्रुप से जो मैसेज आते हैं और फालतू की जो बातें होती है, जो गांधी पर एक किताब एक बार इंडिया टुडे ने भी निकाला था, पर वो सारी बातें खारिज होती हैं। और गांधी पर जो पुस्तकें जो शायद पूरे भारत में आज तक किसी भी एक व्यक्ति पर, सिंगल पर्सन के लिए लिखी गई है, इतनी पुस्तकें गांधी पर उपलब्ध है। और अहमदाबाद के जो नवजीवन है वहां से प्राप्त की जा सकती है। तो मेरा आग्रह है, इट इज माय रिक्वेस्ट टू रीड मोर एंड मोर अबाउट गांधी एंड नो हिम। आप उसके अधिक अधिक उसको जाने, फिर आप किसी एक स्तर पे पहुंचे, तब आप किसी की क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप पहले आप कुछ समझे, आप तब गांधी की आलोचना है, समालोचना है, रिव्यू है, जो भी कुछ करना चाहे आप करें। पर मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि गांधी यानी एक 20वीं सेंचुरी के, अगर मैं एक बात और अंतिम बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में भी बात कही है गांधी का, हालांकि उसमें चैप्टर नहीं है, पर एक 1000 से 2000 के बीच के बारे में एक लिस्ट बनाई जा रही थी। वो लिस्ट ये बनानी जा रही थी कि कौन लोग ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलर रहे। पॉपुलर रहने का मतलब ये था कि जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे हुआ, और ऐसे इम्पैक्ट हुआ जो आज तक भी है और आगे भी रहेगा, इसके बारे में लिस्ट बनी। पहले उसमें बहुत मुश्किल से 1000 साल का था, क्योंकि 1000 से 2000 AD का था। पूरे वर्ल्ड में यह विचार किया गया, और वर्ल्ड के लोगों को, सारी पर्सनैलिटी के, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे फिलोसोफर हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, है ना, इन सबको उसमें रखा गया। तो फिर 1000 लोगों की लिस्ट बनी। 1000 के बाद उन्होंने उसकी छटनी करी, स्क्रूटनी करी और डिलीट करते गए। फिर उसके बाद 100 लोगों की लिस्ट, 1000 सालों में 100 लोगों की लिस्ट बनी, जिन्होंने सोसाइटी पर इम्पैक्ट किया, जिन्होंने पूरे युग पर, अपने युग पर एक उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। फिर उसके बाद 100 लोगों में से भी डिलीट करते गए, फिर 10 लोगों की लिस्ट बनी। उन 1000 सालों में 10 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाई गई, उनको छाटा गया और उसको सम्मति बनी, एक सर्वसम्मति में। तो उसके बाद उसमें 10 व्यक्तियों में आप ये देखिए कि गांधी का नाम, आप सर्च कर सकते हैं वह चीज गूगल पे भी, और 10 व्यक्तियों में गांधी का नाम है। और जो है ये बहुत बड़ी बात है कि जो जितने भी लोग पिछले पूरे 1000 ईयर्स में होते, 10 मिलियन उसमें हुए थे,
1080 से 2080 के बीच में, उसमें गांधी को रखा गया और पीस मेकर के रूप में, शांति अग्रदूत के रूप में, शांति दाता के रूप में उनको रखा गया। एक बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी उसका नाम भी रखा गया, तो क्रांति की थी है। और कुछ साइंटिस्ट थे, तो ऐसे करके तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, सिद्धांत है। He was a principle, he was a philosophy, he was a history. He was not a ordinary man. He gave the path of art of living. उन्होंने जीने का तरीका, जीने की कला हमें सिखाई, दुनिया को सिखाई, भारत को नहीं। और उनका जो एक यूनिवर्सल थॉट था, तो मैं इस मौके पर डॉक्टर गुंजन अग्रवाल को, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को, वहाँ के डीन के लोगों को, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जिन्होंने मेरी बात को क्योंकि ये अभी वेबिनार है, तो ये तो कह सकता हूँ कि शांति से सुना होगा, बंद भी कर सकते थे, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि सुना होगा। और जो भी इसके पीछे, इसके बाद तैयारी जिन लोगों ने की है, उनको भी मैं थैंक्स देता हूँ। थैंक्स टू ऑल। और इसके अलावा ये डेलिब्रेशन से कैसा रहा, ये तो डॉक्टर गुंजन ही बता पाएंगे बाद में। फिर भी मेरे एक अटेम्प्ट था कि गांधी को हम समझें। गांधी का जो एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने का जो प्रयास रहा है, उस समय जब आजादी नहीं थी, आत्मनिर्भरता नहीं थी, भारत परतंत्र था, भारत इकोनॉमिकली भी परतंत्र था, तो इकोनॉमिकली को साउंड किया, एक कॉन्फिडेंस जगाया। और मैं ये अंतिम बात ये कहूंगा कि गांधी जितना आत्मविश्वास पूरी शताब्दी में भारत में शायद आपने किसी में देखा, पढ़ा, सुना होगा। एक आत्मविश्वास था। उस आत्मविश्वास के बलबूते एक हाड़ फांस के व्यक्ति ने, एक आधे कपड़े पहने व्यक्ति ने, एक लाठी के सहारे उस व्यक्ति ने, एक साधारण से गुजरात के काठियावाड़ में 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे व्यक्ति ने, जो 30 जनवरी 1948 को जिसकी हत्या कर दी गई, उस व्यक्ति ने, जो साउथ अफ्रीका में 24 साल रहा, उस व्यक्ति ने, जो सत्य और अहिंसा का मार्ग बता गया, उस व्यक्ति ने, जो सत्य को ही ईश्वर मानता था, उस व्यक्ति ने एक आत्मविश्वास भारत में जगाया। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आभार, ग्रेटिट्यूड और थैंक्स टू ऑल माय लिसनर। थैंक्स टू डॉक्टर गुंजन फॉर इनिशिएटिंग दिस वेबिनार। Thank you so much, sir, for enlightening us. And it's a great privilege to have you as an eminent speaker. आपके इस सेशन से बहुत प्रकाश डाला आपने गांधी जी के अस्तित्व पर। जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोला कि महिलाओं की स्थिति पहले बहुत खराब थी, फिर गांधी जी ने उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए। आपने श्रम के बारे में बोला कि वो मेहनत में बहुत विश्वास रखते थे और श्रम से ही इंसान सफल हो सकता है। मातृभाषा पर उन्होंने जोर दिया कि पहले मातृभाषा को सिखाया जाए, उसी के बाद कोई अदर भाषा सिखाई जाए। उसके बाद आपने नॉन वायलेंस, सर्वोदय, ट्रूथ, सत्याग्रह सबके बारे में बताया। एंड ये सब सुन के हम लोग जब सुन रहे थे तो उसी एज में हम लोग पहुंच गए थे, बिल्कुल रियल लग रहा था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी जी, थैंक यू सर। Now I would like to take question from the participants. The first question came from one of our respected sir, Dr. Shrikant Gupta, Director of NTDC. Just a minute. What do you comment on Gandhian philosophy on Satyagraha is right in today's scenario also, when our country is planning to step ahead towards Atmanirbhar? This he is collaborating in context of farmer agitation and disturbance now.
he want to ask this, sir. Yeah. Yes, sir. No, you are not audible, sir. Yeah. Now? So please, yeah, Now it's Yeah. audible. It's okay, ma'am? yes, sir. Yes, sir. Please carry on. My submission is that about the present scenario in regard to the farmers who are agitating for their rights. गांधी ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक अधिकार है और वह अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन चला सकते हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं और शायद आप भी देख पा रहे होंगे, जो किसान हैं वह अहिंसक तरीके से ही अपना आंदोलन चला रहे हैं। और मैं ज्यादा तो ये नए कानून है इसके बारे में ज्यादा मेरा कोई अध्ययन नहीं है, परंतु जितना मैंने समझा है किसी इकोनॉमिस्ट से, एक डर जरूर है कि जब बड़े घराने उपज को ले लेंगे और बड़े घराने कौन सी उपज, कौन सी हार्वेस्ट, कौन सी फार्मर कौन सी हार्वेस्ट पैदा करें, कौन सी नहीं करें, तो उससे ये डर लगा रहेगा कि कहीं एक मोनोपोली न हो जाए आने वाले समय में। इसलिए जो फार्मर्स का जो एजिटेशन है वो ठीक है, ठीक सा जान पड़ता है। और सत्याग्रह में ये सारे जो, चाहे ठीक है सत्याग्रह जिस डिग्री से गांधी सोचते थे शायद न भी हो पावे, अभी तो चल रहा है, कहीं हिंसा दिखाई नहीं दे रही है, परंतु गांधी की ये देन है। इट वाज एंड इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी, द क्रेडिट गोज टू मिस्टर गांधी कि सत्याग्रह की बात उन्होंने कही है। लोग देखिए कि अपनी बात को कहने का अधिकार, और जब आपको मालूम है जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई अभी तो ये कहा कि भाई फार्मर को हम मना नहीं कर सकते हैं कि वह अपना जो आग्रह है या इन कानूनों के विरुद्ध जो बात है वह उसको वापस, यानी वह अपने एजिटेशन को वापस लें, उसको टर्न डाउन करें, ऐसा वह नहीं कहते हैं। इसलिए जो हमारे विद्वान साथी और प्रोफेसर साहब ने कहा है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि गांधी सत्याग्रह, गांधी ने एक सत्याग्रह का रास्ता दिखाया है और इस सत्याग्रह पे 1947 के बाद आज तक कई बार हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं, कहीं वायलेंस भी हुआ है, परंतु ये रास्ता उन्होंने उसमें वायलेंस की बात नहीं की और रास्ता जो आज फार्मर कर रहे हैं शायद ठीक ही जान पड़ता है। थैंक यू। Thank you, sir, for answering our query. The second question is, आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के लिए गांधी जी की फिलोसफी कहाँ तक सार्थक है? Sir, please unmute yourself. Sir, please. You're not audible? हाँ, या Now it's audible. Please. अब आ रही होगी? हाँ जी सर, जी। आर यू लिसनिंग? आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी की रेलेवेंस के रूप में देखिए, आप ये नहीं समझ सकते हैं आज की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं हमारी, आज की लड़कियां हैं, युवतियां हैं, यंग जनरेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली गांधी ने ऐसा किया, राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पर आप उस युग की नारी के बारे में सोचे। जब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, लेटेस्ट, आपको विश्वास नहीं होगा कि जब एक औरत बीमार हो जाती थी, स्पेशली रॉयल फैमिली की बीमार हो जाती थी तो वैद्य आता था, वैद्य होते थे, वो आता था तो वह कैसे उसको देखता था, वो उसके हाथ नहीं लगा सकता था, न वो उसका चेहरा देख सकता था। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, जो फैक्चुअल बात है, साइंटिफिक नहीं फैक्चुअल। तो एक पर्दा टांग दिया जाता था
पर्दे को टांग कर आपको आश्चर्य होगा कि उसके हाथ की कलाई पर एक डोरा बांधा जाता और डोरे का दूसरा छोर वेद को जो कर्टेन के एक तरफ तो वह है जो पेशेंट है और दूसरे वो उस डोर को पकड़कर उसकी जो धड़कन चलती थी जिन्हें उसके आधार पर जो हार्ट बीट है जो पल्स रेट है यानी उसे उस पल्स रेट के आधार पर वह बताता था और इलाज देने की कोशिश करता था। तो ये स्थिति थी और जब आपको विश्वास नहीं होगा कि जो लड़कियों की पढ़ाई तो 10वीं के बाद लगभग असंभव थी। सन 60 के दशक में बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी, है ना। पीएचडी तो बहुत शायद कोई रेयर करती थी, डॉक्टर रेयर थी। तो ये जब गांधी ने ये विचार रखे और एक ताकत बनी। देखिए मैंने आपको एक निवेदन किया था, एक व्यक्ति भी एक सिंबल बन जाता कई बार। इंदिरा गांधी कई बार जो है इंदिरा गांधी सिंबल बनी काय की महिलाओं के लिए, प्रधानमंत्री बंडार नायक है श्रीलंका की, सिंबल बनी, है ना। जो पहली महिला ये पुलिस में, क्या नाम था मैडम जो आजकल वहां के गवर्नर है पांडिचेरी की, तो वह पहली, ये सिंबल बने, ये सिंबल बने, है ना। आकाश में वह महिला गई, कल्पना चावला सिंबल बनी। तो गांधी ने तो बहुत बड़ा काम किया, गांधी की रिलेवेंसी तो बहुत है। गांधी ने कब कहा कि महिलाएं नहीं पढ़े, गांधी ने कब कहा कि महिलाएं आगे नहीं बढ़े, गांधी ने कभी भी नहीं कहा कि महिलाएं नहीं पढ़े, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करें, या उनको बराबरी का दर्जा दी जाए, या उनको तनख्वाह बराबर, उनके वेजेज बराबर नहीं दी जाए, ऐसा वह कभी भी नहीं कहते थे। ऐसा किरण बेदी, हाँ या राइट, थैंक्स टू पृथ्वी सिंह जी, किरण बेदी। अब ये सिंबल है, देखिए आप आज मान लो आप यूनिवर्सिटी में आज आप हैं, अब वो वाली बात नहीं है कि आपको कोई कह अरे यार वह लेडी अकेली है, सो मेनी, बल्कि मेरे कॉलेज में जब मैं वाइस प्रिंसिपल था तो 115 महिलाएं थी आउट ऑफ 183, 115 वर द फीमेल लेडीज प्रोफेसर। तो आप देखिए कि ये युग जो आया है ये अचानक नहीं आता। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो सोशल चेंजेस हैं ये बड़े स्लोली और ग्रेजुअली चलते हैं। आप एक ओवर द नाइट यू कांट इमेजिन अबाउट द सोशल चेंज, आप एकदम नहीं कह सकते माइंड सेट हो जाएगा किसी, एकदम महिलाओं के प्रति हो जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ कि आज जो ये जो बच्चों के साथ हो रहा है रेप या और गलत काम हो रहे हैं, ये जो बातें हो रही, ये एक ऐसी मानसिकता है जो हाल ही में उपजी है। ऐसा भारत में लंबे समय में भी गांधी के समय कभी नहीं हुआ है, पहले भी नहीं हुआ है। ये मनोदशा पे अंकुश की जरूरत है। या दहेज के बारे में जो पहले नारी का उनको जला दिया जाता था, बर्न किया जाता था, ये सब बातें, परंतु गांधी इक्वलिटी की बात करते हैं, वेजेज की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात है गांधी विमेन के जो रेस्पेक्ट की बात करते हैं, आदर की बात। वो आदर की एक आप पढ़िए हो गांधी को कि वह एक रेस्पेक्ट की बात करते हैं, आदर की बात करते हैं, डेफरेंस की बात करते हैं कि नारी का एक सम्मान है, तो वह उस सम्मान की बात करते हैं। कभी भी नारी के सम्मान के विरुद्ध गांधी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, पर गांधी ये भी चाहते हैं कि जो पारिवारिक व्यवस्था है वह खत्म न हो जाए, ऐसा वह नहीं चाहते हैं। तो गांधी की रेलिवेंसी है महिलाओं के लिए, गांधी आज सिंबल है, गांधी एक ताकत है उनके लिए। और गांधी देखिए आप गांधी की गांधी जब 15 साल के तो शादी होगी, कस्तूरबा उनसे बड़ी थी उम्र में, आपको ये पता होना चाहिए, कस्तूरबा उनसे बड़ी थी। और कस्तूरबा को भी नाराजगी भी हुई कई बार उनके कई मामलों को लेकर, जब कस्तूरबा के गहने उन्होंने दान देने के लिए बात करी, पर कस्तूरबा का रेस्पेक्ट रिकॉर्ड था। और एक बात बताइए, अगर रेस्पेक्ट रिकॉर्ड गांधी भी देते तो ये जो इतनी सैकड़ों महिलाएं जो अच्छे परिवारों की भी जुड़ी हैं, तो वह क्यों उनके साथ आती। तो इसलिए गांधी ने महिलाओं को रेस्पेक्ट दिया। गांधी
एम्पावरमेंट जिसे आप आज कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, इससे बड़ी ताकत, हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, है ना। विडो रीमैरिज की बात गांधी जी ने एक जगह कहा, मैं अपने युवा साथियों को ये कहना चाहूंगा कि जो कम उम्र में जो लड़कियां महिलाएं जो विडो हो गई हैं, विधवा हो गई है, उनको उनके साथ मैरिज करें जवान लड़के। तो ये बहुत बड़ी बातें थी। ये देखिए आज आपको नहीं लगता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज एक सामान्य बातें लगती है, पर आप उस समय देखिए जब एक औरत एक घूंघट को उठाकर, एक घूंघट को हटाकर जब वह स्कूल में गई या कॉलेज में गई या कहीं किसी बैंक में या किसी स्कूल में उसने नौकरी करी, असंभव बात है, दैट वाज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि एक नारी इस तरह से जाए। मैं जानता हूँ कि ना कुछ मेरे सामने की बातें जो महिलाएं हैं ये बुर्का पहन कर आती थी और वहां खूंटी पे कॉलेज में खूंटी में टांग देती थी, फिर पढ़ाने जाती। और मुस्लिम महिलाएं नहीं, हिंदू महिलाएं भी लंबे घूंघट लेके आती थी और तब जाकर वो वहां जाकर पढ़ाने जाती थी या अपना काम करती थी या मेडिकल प्रोफेशन करती थी। तो ये ताकत है जो गांधी ने दी, कई लोगों के साथ मिलकर विमेन को एम्पावरमेंट बनाया। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो आपके साथी है रितु शर्मा, क्या नाम है अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, तो वे आप सब महिलाएं आज हैं, बड़े बड़े पदों पर है और फाइनेंस मिनिस्टर महिला है आज, है ना। तो बहुत बड़े पदों पर अब ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है जितनी आज से 50 साल पहले। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी वन ऑफ आवर रिस्पेक्टेड ऑडियंस में से पूछा है सवाल अगला, डॉक्टर फूल सिंह सहरिया, हरिजन की क्या प्रासंगिकता है सर, ये पूछा है सर। इस तरह से प्रासंगिकता क्या हरिजन की, जी जी, क्या प्रासंगिकता क्या है सर, ऐसे ही पूछा है सर। हेलो, ठीक जी है जी मैडम। सर, या सर यू आर ऑडिबल। देखिए हरिजन उद्धार के लिए गांधी ने जो कुछ किया सब जानते हैं, चाहे मंदिर का प्रवेश हो, चाहे कुएं से पानी पीने की बात हो, चाहे उनके स्कूल है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दे दिया है और मेला ढोने की जो प्रथा है वह खत्म हो गई है कभी की, और शौचालय बना दिए गए हैं, अभी हाल में नई सरकार ने भी बनाए हैं। तो पर फिर भी ये बात, और इनको रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट में राइट्स है। पर हाँ ये बात जरूर है कि अभी भी लोगों का नजरिया, जिसे सामाजिक सोच कहते हैं हम, सोशल एक एटीट्यूड कहते हैं, वह अभी ऐसा बदला नहीं है कि अब हम कह दें कि भाई ये बिल्कुल इक्वल आ गए हैं। हालांकि कई बड़े पदों पर हैं, कई लोग कलेक्टर भी हैं, पुलिस में भी हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, एमएलए भी हैं। पर हाँ ये बात है कि अभी भी एक गुंजाइश है उनमें सोशल चेंज की, उनके प्रति दृष्टिकोण को बदलने की। और ये तो मानना ही चाहिए हमें। देखिए हम किसी भी वर्ग, क्लास से, कम्युनिटी से, कास्ट से, सेक्स से हो, है ना, पर ये तो मानना ही चाहिए कि भाई सब लोगों को जीने का अधिकार है। और सब लोगों को जीने के अधिकार के साथ साथ, ये बात तो बहुत पहले ही तय हो गई थी जब फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, कि सब लोगों को जीने का अधिकार है और सब बराबर है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये बात होनी चाहिए। और आज भी कुछ हरिजन बिहार हो या कुछ जगहों पर जो इस तरह के लोग हैं, वह वैसी स्थिति नहीं आ पाई है जिसे आप कह सके। तो पर फिर भी जो गांधी ने किया, अगर गांधी के संदर्भ में बात करूं, तो गांधी ने वह सब कुछ किया हरिजनों के लिए जो संभव था। और हरिजन पत्र जो उनके हैं, उनके लगातार हरिजनों के बारे में लगातार व्यू आते रहे हैं। कई लोगों को समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हरिजनों के उद्धार के लिए लगाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जी सर, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू फ्रॉम माय ऑडियंस। गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के लिए आज की युवा पीढ़ी को क्या आदर्श अपनाने चाहिए? जी आत्मनिर्भर भारत के लिए युवा पीढ़ी को
सबसे बड़ा काम तो ये करना चाहिए, तो आज भी 60% से अधिक 60% से अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन गांव में है। पहले 80 थी, अब अगर मैं सही हूँ, इफ आई एम करेक्ट, 60% मानते हैं आजकल विलेज, मोर देन 60%। तो इस तरह के जो हमारे वैज्ञानिक है, जो युवा हैं, वो ऐसा काम करें कि लोगों को गांव में रोजगार। देखिए 3 चीजें हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट जरूरी है गांव में, रोजगार, एक होती है उनकी हेल्थ, हॉस्पिटल, ये उनके स्वास्थ्य के बारे में, और तीसरी होती है एजुकेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ की सुविधा है, द फैसिलिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन है, प्रॉपर स्कूल ये है, और चौथी चीज एक और मान सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट, उनकी कनेक्टिविटी पास के शहरों से अगर है तो सब ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो अब मेरा यही चिंतन है और यही कहना है कि युवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है आत्मनिर्भर भारत को बनाने का लिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये गांधी कोई तकनीक के खिलाफ नहीं थे, वह उस हद तक तकनीक के पक्ष में थे जब तक बेरोजगारी न बढ़े। वह टेक्निक्स तो ऐसा नहीं, वह नहीं मानते थे। आज ये मोबाइल आया, मोबाइल पर मौसम की जानकारी भी है, अनाज के भाव भी है, कब कौन सी फसल बोई जाए, कब कौन सी खाद बोई जाए, क्या किया जाए, ये सब उसको इसमें ऐप में उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो बेनिफिट उठाए, परंतु जो स्टार्टअप करे, जो युवा है, इंजीनियर है, जो डॉक्टर गांव में रहे, गांव से घृणा न करे, गांव वासियों से घृणा नहीं करे। और मैं एक बात कहूंगा कि गांव एक्चुअली क्या हुआ कि नेचर से दूर हो गया। हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल है सारे, नेचर से उनको नेचर का आनंद ही नहीं है। तो इसलिए ये पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बच्चों को कुछ समय के लिए खेतों में और जंगल में, गांव में रखा जाए तो वो सीख पाएंगे कि जब नेचर से प्रेम करेंगे तो विलेज उनको समझ में आएंगे, विलेज के जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगी। और विलेज में अगर ये जो हमारे नए युवा साथी हैं और सरकार है, अगर ये एम्प्लॉयमेंट को, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को और कनेक्टिविटी को पैदा कर सकी तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ सकेंगे। क्योंकि वो वहाँ की जो सोशल, जो वहाँ की इकोनॉमिक नीड्स है, उसके हिसाब से वह काम करें और आत्मनिर्भर भारत। देखिए मैं एक बात और बताऊं कि आत्मविश्वास, एक ये मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस में आप देखिए कि, और चक दे इंडिया, स्वदेश, ये ऐसी कुछ फिल्में आई जिसमें ये दिखाया गया कि भारत के लोगों में कितना आत्मविश्वास है। तो ये जो चीज है, जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें चक दे इंडिया और ये जो फिल्में हैं, इन फिल्मों में एक आम व्यक्ति के, आम भारतीय में एक आत्मविश्वास पैदा किया गया है। तो ये बात अगर युवा साथी समझ गए कि हम कर सकते हैं, हमें करना है, तो ये जो फिल्मों ने एक संदेश दिया। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, उन फिल्मों में एक आम आदमी को जीतता हुआ दिखाया गया है। उसका जो एंग्री मैन है, वह जो उसका रोल है, वह एक आम आदमी को दिखाया गया है, आम आदमी के विश्वास को दिखाया गया है। और ये आत्मविश्वास ही भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। और युवाओं का रोल इसमें निश्चित ही सराहनीय होना चाहिए। ओवर टू रितु जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सही कहा सर, बिल्कुल आपने। इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू सर for grace the session with your splendid talk. Now finally I request Dean ma'am again for vote of thanks. Over to you ma'am. Thank you, Ritu. So it's my pleasure to extend my formal gratitude. I would like to thank Honorable Vice Chancellor Sir for his encouragement and continuous support. And I wish to thank our respected worthy speaker who
where shared his scholarly observation on various aspects. For example, significance of labor, श्रम में शर्म नहीं होना चाहिए. India lies in smart villages, सब एक के लिए और एक सब के लिए. मौन धारण, भाषा पर संयम, चरखा काटना, simplicity in life and style, his courage and bravery in violation of salt law. So you have discussed so many things related to the life of Gandhiji, and you explained why he is called Mahatma right now at present. And real pleasure lies in service. And Gandhiji has taught so many things with his personality, with his way of working, with his ideology and perception, and his time management. And वह मानव नहीं एक संस्था थे, as you mentioned, and as Ritu said, we have been transported to that age. And really, sir, I enjoyed the session and the intellectual feast you have presented. That was really, really amazing. I'm very thankful to you. मेरे एक छोटे से आग्रह पर आप एकदम तैयार हो गए, and you took time. You have given us time from your busy schedule. I'm really thankful to you. So, and thank you all the participants and team members. Thank you, Akhilesh, for your support. And thank you, Ritu, for such a beautiful prayer. And thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am.